Hello students, right, in the admission of the partner we have in the last video we have solved sum number 14, sum number 15 that is short sum, right. वो sum number 15 जो है 16, 17, 18 में ये cover हो जाएगा. Then after sum number 16 that I made you to solve afterwards. Now today we will solve sum number 17. Ekta and Isha are the partner sharing P&L in the ratio of 2:1. Balance sheet of their firm as on 31st 3/15 was as under. Balance sheet is given. Balance sheet में देखिए assets, liability में जनरल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Creditors as it is, bills payable as it is, right. Now after balance sheet they admitted Arpita as a new partner on 1/4/16. Ankita sacrificed 1/12 share from her. Ekta sacrificed 1/6 शेयर फ्रॉम हर, राइट. तो ये दोनों जो सेक्रीफाइस करेंगे वो अर्पिता का शेयर, बिकॉज हर शेयर इज़ नॉट गिवन. सो सेक्रीफाइसिंग ऑफ अंकिता एंड ईशा, टोटल ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर इज अर्पिताज न्यू शेयर. अर्पिता इज ब्रिंग proportionate capital. How much capital she brings that is not given, but proportionate capital she brings that is given. So we have to find out proportionate capital. Then after Arpita is bring her share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 90,000. Her share of goodwill amount is not given, so we have to find out. Fixed assets are to be depreciated by 10%. Now in the old balance sheet, machinery and furniture, 2 fixed assets are given. See, machinery and furniture. So tick mark on machinery, tick mark on furniture. Then after 18 आ गया, एक मिनट. Then after all the datas are good. Now I will explain this at the time when this adjustment comes. Then insurance premium of 2,400 out of 12,000 is to be carried forward for the next year. So less from the insurance. First effect insurance is not given. So first effect revaluation debit. Second effect becomes second effect asset side. First effect becomes revaluation credit, that is prepaid insurance, right. Now before solving the sum, always make a calculation of sacrificing ratio, calculation of goodwill. Now see here, Ankita, Isha, Arpita is a new partner. Her share is not given. We have to find out her share. Old ratio is 2:1. Sacrificing ratio और अंकिता 1/12, ईशा 1/6. इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सेक्रीफाइसिंग, दोनों का सेक्रीफाइसिंग, दैट इज न्यू शेयर फॉर अर्पिता. सो 1/12 प्लस 1/6 टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, राइट. सो 1/12 प्लस 2/2 कम्स 3/12. इसका और शॉर्टर कर दिया, सो इट कम्स 1/4. सो अर्पिताज न्यू शेयर दैट इज 1/4. Now calculation of goodwill. Goodwill of the firm, that is 90,000 is given. So Arpita, how much Arpita brings into the business? So 90,000 multiplied by 1/4. Her share is 1/4. तो वो तो अपने शेयर जितना है वही उतना ही goodwill लाएगी. So 22,500. Now this 22,500 what Arpita brought into the business, that this goodwill is to be distributed between old partners in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio ये आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो आ जाएगा 2/12 यहाँ. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1:2, राइट. तो 22,500 को 1/3 1:2, तो 1/3 2/3. तो अंकिता का आ रहा है 7,500, ईशा का आ रहा है 15,000, राइट. ओके, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिखी है गुडविल की. नाउ वी कैन नो हाउ टू पोस्ट एंट्री ऑफ द गुडविल, राइट. जितना हो सके उतना कम कैलकुलेशन से, मतलब याद ही रखने की कोशिश कीजिए कि ये एंट्री यहाँ पे, ये एंट्री यहाँ पे.
बिकॉज बोर्ड में आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने जाओगे फिर आपको टाइम कम पड़ जाएगा. एंड ऑल दिस कैलकुलेशन डज नॉट कंटेन एनी मार्क्स. कैलकुलेशन सिर्फ लेजर्स के ही मार्किंग सिर्फ लेजर का ही है. कैलकुलेशन डजंट हैव एनी मार्क्स, राइट. सो डू नॉट वेस्ट योर होल टाइम इन मेकिंग कैलकुलेशन. आप हो सके उतना शॉर्टर और क्विक कैलकुलेशन करिएगा. Now see here I have prepared all the 4 ledgers: revaluation, partners capital, cash, bank. This is balance sheet. Now always record debit, credit, particulars, amount, liability, asset, proper title because it contains marks in the board. right? ये हेडिंग के मार्क्स है. फिर कभी कभी कोई ऐसा भी सोचता है कि चलो सम नहीं आता, हेडिंग लिखा, स्पेसिमेन ड्रॉ कर देते, अंदर कुछ नहीं लिखते, कुछ आता नहीं है. स्पेसिमेन की मार्क्स तो होंगे बट स्पेसिमेन ऑल्सो डजेंट हैव एनी मार्क. अगर आपने स्पेसिमेन रखा तो ज़ीरो, स्पेसिमेन ऐसा ही ब्लैंक छोड़ दिया तो ज़ीरो मार्क्स, राइट. ओके, now we start recording in this ledger. First of all we record this is opening balance of capital. This is already given in the sum. By balance brought down, Ankita ka 64, Isha ka 32,000, right. Now new partners capital is not given in the sum. New partner के उसमें ऐसा बोला है that a new partner brings proportionate capital. तो वो proportionate हमें find करना है at the end. At the end we find out proportionate capital, right. Okay, now we start solving the sum. First of all we transfer balance sheet into the old balance sheet into the new balance sheet, right. First of all we write down machinery. तो ये रहा machinery, 1 tick mark, write down inner side, leave 1 line and draw the line. Then furniture inner side, leave 1 line and draw the line. Data stock पे no tick mark, सीधा outer side. 40,000 datas are, now see our datas are 40,000 is given, less 3,200 and outer side 36,800 is given, right. तो डेटर्स पे यहाँ पे क्या लिखे, न्यू बैलेंस शीट में मैंने 40,000 लिख दिया ना. वाई? बिकॉज वन एडजस्टमेंट इज गिवन दैट ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड, दैट मीन्स नाउ वी डू नॉट नीड फॉर दिस रिजर्व. अभी ये रिजर्व की ज़रूरत है नहीं. समझ में आ रहा है. सो डेटर्स एज इट इज़ 40,000. सो डेटर्स हमने न्यू बैलेंस शीट में देखो ये 40,000 एज इट इज़ रिकॉर्डेड. व्हाट अबाउट दिस 3,200? ये 3,200 का क्या? सो दिस बिकम्स अवर इनकम, राइट. सो दैट वी विल रिकॉर्ड in revaluation credit side by BDR 3,200. This is very important point. When it is given that all debtors are good, all debtors are good दिया है debtors के लिए, that means debtors as it is. ये जो debtors दिए ना 40,000, this we record as it is. ये देखो debtors as it is. So what about this reserve? So this becomes our income. So this we record on revaluation credit side, right. ओके, और कैश एंड बैंक 26,000. तो ये आएगा इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,400, राइट. ओके, नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस, नाउ लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट. जनरल रिजर्व को ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देखो partners capital account credit side, old partners in their old ratio, right. Now creditors as it is, bills payable as it is. See, liability side creditors as it is, bills payable as it is, right. Okay, now we solve point for the goodwill. Now अर्पिता brings 22,500 गुडविल इनटू द फर्म. तो वो कैश ही ला रही होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 22,500, राइट. दिस सेम वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. उसका अमाउंट ये आ रहा था, ये 7,500 and 15,000. तो ये हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 7,500 and 15,000, राइट. ओके, सो पॉइंट फॉर गुडविल इज़ ओवर. यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं, राइट. ओके, नाउ एडजस्टमेंट्स.
दिस इज सॉल्व नाउ. ये फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो देखो फिक्स्ड एसेट में मशीनरी 10%, 6400, फर्नीचर 10% डेप्रिशिएशन 4000 लेस करके अमाउंट बाहर. सेकंड इफेक्ट सी रिवैल्यूएशन डेबिट, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, right? Okay, next one, that is all debtors are good. This is done. Next, insurance premium of 2400 out of 12,000 is to be carry forward for next year. 2400 next year carry forward करना है. That means this is prepaid insurance premium amounted to rupees 2400. First effect goes in a revaluation account credit side by insurance prepaid insurance premium 2400. Second effect goes asset side prepaid insurance premium 2400, right? Okay, now everything is over. Now only we have to find out that अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना ला रही है ये हमें फाइंड आउट करना है. बट फॉर दिस वी नीड टोटलिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो टोटल करें. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. इट इंकर्स लॉस. लॉस को भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लॉस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, राइट? सो रिकॉर्ड कर दिया रिवैल्यूएशन लॉस. इसका टोटलिंग किया. टोटलिंग करके डिफरेंस आ रहा है 79,500, 551,000. नाउ वी कैन फाइंड आउट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अर्पिता. वो कैसे फाइंड करें देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ अंकिता आ रहा है ये दोनों जो कैपिटल आ रहे हैं ना ये इसका टोटल. सो दैट कम्स 1,30,500, राइट? अभी अर्पिता का शेयर है 1/4. तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/4 कम्स 3/4. क्योंकि हियर इन दिस कैपिटल अर्पिता's कैपिटल इज़ नॉट एडेड तो ये रिमेनिंग शेयर ही हुआ, राइट? तो व्हेन रिमेनिंग शेयर इज़ 3/4 कैपिटल इज़ 1,30,500. तो अर्पिता का शेयर है 1/4 तो उसकी कैपिटल कितने बनेगी समझ में आ रहा है ये. दिस इज़ द कैपिटल ऑफ अर्पिता एंड ईशा ओनली, राइट? अंकिता एंड ईशा ओनली. अर्पिता's कैपिटल इज़ नॉट एडेड ओवर हियर. दैट मीन्स दिस इज़ द रिमेनिंग कैपिटल. पूरा एक कैपिटल है उसमें से, राइट? अर्पिता का निकाल ले तो ये हो गया. इन दोनों का ये पोर्शन हो गया. तो ना वी कैन फ्रेम इक्वेशन 3/4 रेशियो या शेयर पे कैपिटल इतनी तो 1/4 शेयर पे कैपिटल कितनी तो आ रही है 43,500. सो दिस इज अर्पिता's कैपिटल. This is Arpita's capital, right? So now we can write down Arpita's capital. Now these two we record in the balance sheet liability side. Now we record Arpita's capital also 43,500. Total तीनों का बाहर, right? Total of cash account that comes 9. Total करके balance find out कर देंगे. This we record on asset side. ये रहा cash and bank 92,500. लास्ट में भी लिख सकते हैं इसको या बीच में भी लिख सकते हैं, राइट? बोथ आर करेक्ट. देन मेक द टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, राइट? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द सम नंबर 17, सम नंबर 16 आफ्टरवर्ड्स. बिकॉज उसको दैट इज़ अ लिटल ट्रिकी सम. उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. सो सम नंबर 17, राइट? नाउ अभी मैं ये सम पे वीडियो मैं सम के ऊपर वीडियो थोड़ा सा मैं पॉज कर देती हूँ. तो आप पॉज कर करके सम लिख लेना. दिस इज सम नंबर 17. आगे वर्किंग का भी मैं दिखा देती हूँ. दिस इज बैलेंस शीट नाउ. Right? Okay. So that's all for today. Now illustration number 28, that is same as the sum number 17. So illustration number 28, that is in homework, right? ये chapter number 5 and 6 की आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, right? Because
यस हो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि हर एक सम आपको लर्न हो जाए, बिकॉज दोनों चैप्टर में से 8 मार्क्स के फुल सम्स आने वाले हैं. आप आई डोंट विश दैट यू कैन लूज एनी सिंगल मार्क इन दिस admission of a partner and retire of a partner, right? So practice as much as you can, right? Okay.